हेलो फ्रेंड्स, आज हम लर्न करने वाले हैं एस चैप्टर 4 ऑफ स्टैंडर्ड 7 विच इज़ मेडिवल आर्किटेक्चर सिटीज़ मर्चेंट्स एंड क्राफ्ट्समैन. So it's from GSEB board. Okay, so first of all, it's a very beautiful chapter in which we learn about जो भी हम ताजमहल देखते थे, सोमनाथ टेम्पल देखते थे, गोल्डन टेम्पल देखते थे, रेड फोर्ट, ऐसे कई सारे मॉन्यूमेंट्स जो हम देखते थे, जो हम क्राफ्ट्समैनशिप के बारे में हमने पढ़ा है. फॉर एग्जांपल पाटन का जो पटोला है उसके बारे में हमने सुना है, वो सारी चीज़ों के बारे में हम डीपली स्टडी करेंगे. सो आई होप you will enjoy this video and will learn. Okay, so first of all, the para is about medieval architecture. Okay, so Indian sculpture art forms have a unique and long heritage. India is world famous for its rich cultural heritage of art and architecture. Since ancient times, in different periods, a lots of development has been there in architecture, like stupas and stone inscriptions built in different provinces during Mauryan age, Gandhar and Mathura style of stupas during post-Mauryan era. Palaces, stupas, pillars, monasteries, mansions and temples during Gupta period were constructed. In the Middle Age, the Pala, Pratihar, Rashtrakuta, Rajput, Delhi Sultanate and Mughal rulers did a lot of work in the field of architecture, which includes stepwells, lakes, temples and mosques. Different provinces of India have developed architectural heritage in their own ways. As we all know that India is known for its rich cultural heritage of art and architecture, right? सारे पीरियड्स अलग अलग गए जिसमें अलग अलग स्टाइल्स में लाइक मथुरा स्टाइल, गांधार स्टाइल एंड मॉडर्न एज में अलग अलग स्टूपास लाइक पिलर्स, पैलेसेस, मोनेस्ट्रीज और मैंशंस, टेम्पल्स, ऐसे कई सारे डेवलपमेंट हुए. ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड भी हुआ और फिर मिडल एजेस में लाइक पाला, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, कुटा, देन राजपूत, दिल्ली सल्तनत, मुगल्स, इन लोगों ने भी आर्किटेक्चर में बहुत अच्छा काम किया है. लाइक स्पेशली दे आर नोन फॉर देयर स्टेप वेल्स, लेक्स, temples and mosques as well. Sculpture. Okay. The art of sculptor's imagination. Is the form of decorating rock, wood or metal with the help of chisel and hammer. Like पूरे एक पत्थर को आप अपनी इमेजिनेशन से आप स्कल्प्ट करते हो हथौड़े से और चीजल से. Then architecture. The word Shilpa Shastra is also used for architecture. Architecture basically means construction. Architecture is the construction of houses, towns, wells, forts, minarets, tombs, etc. A person who is proficient in architecture is called architect. अब आर्किटेक्चर को हम शिल्प शास्त्र भी बोलते हैं. इट मीन्स कि यहाँ पे जो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं घर का, पूरे शहर का, बाद में हम वेल, फोर्ट्स, बाद में टॉम्ब जो होता है, वो सब हम जो बनाते हैं उसको आर्किटेक्चर बोलते हैं. और इसको जो परफॉर्म करता है वो प्रोफेशनल इंसान को आर्किटेक्ट बोलते हैं. आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया. Okay, the period between 700 AD to 1200 AD was the Rajput era. In Rajput era, Nagar styles of the temple were prevalent in India. This includes the temples of Khajuraho, Lingaraj temple of Puri and Gop temple of Saurashtra. अब 700 से लेकर 1200 AD के बीच में राजपूत एरा चल रहा था और जो राजपूत एरा है वो नागर स्टाइल के टेम्पल जो है उसके लिए फेमस था. और इस स्टाइल के टेम्पल में खजुराहो, लिंगराज टेम्पल, बाद में गोप टेम्पल, ये सारे इसके पार्ट हैं. नाउ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिल्ली सल्तनत अ न्यू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर डेवलप्ड विच वॉज एसोसिएटेड विद द इस्लाम इन विच अरब स्टाइल इज प्रिडोमिनेंट इन द बिगनिंग. अब उसके बाद जो आया था वो दिल्ली सल्तनत. अब दिल्ली सल्तनत ने अरब स्टाइल और इस्लाम के साथ एक नया आर्किटेक्चर डेवलप किया. The three main structures in the architecture are the mosque, the tomb and the roza. Among the main architectural structures of Delhi was Jama Masjid, Qutub Minar, Hauze Khas, Alai Darwaza and Siri Fort are there. अब इनमें से उन लोगों के 3 स्ट्रक्चर थे. एक तो था मॉस्क,
टॉम्ब एंड रोज़ा। और ये जो सारे मैंने नेम्स लिए वो सारे इस आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल्स हैं। द मॉस्क्स एंड कैनाल्स built by Firoz Shah are unique. The Muslim rulers of Gujarat, Bengal and Malwa built many structures during this time. अब जो फिरोज़ शाह है उसने मॉस्क और कैनाल बिल्ड की थी, वो बहुत ही यूनिक थी। अब मुस्लिम रूलर्स जो थे गुजरात के, बंगाल के, मालवा के, उन्होंने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स उस टाइम पे बनाए, जैसे भादरा फोर्ट था, जामा मस्जिद थी अहमदाबाद की, सोना मॉस्क थी बंगाल की, और द फोर्ट ऑफ कुंभलगढ़ built by Rana Kumbha and Kirti Stambh or Vijay Stambh of Chittor are important pieces of Hindu architecture built during that time. अब जो कुंभलगढ़ फोर्ट था वो राणा कुंभा और कीर्ति स्तंभ, जिसे हम विजय स्तंभ भी बोलते हैं, जो चित्तौड़ का है, वो सारे हमारे हिंदू आर्किटेक्चर के इम्पॉर्टेंट पीसीस हैं। एंड यस, ये विजय स्तंभ की हमें फ़ोटो भी दिखाई गई है। Sun Temple of Konark and Hoshaleshwar Temple of Karnataka are some of the most special types of architecture of 13th century. अब ये जो हमें कोणार्क सन टेम्पल की इमेज भी दी गई है, वो सारे जो आर्किटेक्चर थे लाइक होसलेश्वर टेम्पल ऑफ कर्नाटक, वो सारे 13th सेंचुरी के मास्टरपीसेस थे। The Konark Sun Temple is located near the Bay of Bengal in Puri district of Odisha. This temple was built in the 13th century during the reign of King Narsimhavarman I of Ganga dynasty. This chariot temple was built like the chariot of sun, pulled by 7 horses. It has 12 wide wheels. This temple is also known as Black Pagoda because it is built of black stone. अब ये जो अमेजिंग मास्टरपीस है बे ऑफ बंगाल के आज के नज़दीक में लोकेटेड है, जो कि ओडिशा के पूरी डिस्ट्रिक्ट में है। ये किंग नरसिम्हावर्मन वन ने बनाया था, विच ही वॉज फ्रॉम गंग डायनेस्टी। और इस टेम्पल की जो डिज़ाइन है वो लाइक अ चैरियट, लाइक अ रथ इसकी डिज़ाइन है। इसमें 12 व्हील्स है और इसे हम ब्लैक पगोड़ा भी बोल सकते हैं। और जैसे कि सूर्य देवता के 7 घोड़े थे, और यहाँ पे भी वो रथ जो है सूर्य नारायण देव का ये मंदिर है, इसलिए 7 घोड़े इसे खींच रहे थे, चैरियट लाइक टेम्पल था। सो इसे हम ब्लैक पगोड़ा बोलते हैं क्योंकि ये ब्लैक स्टोन से बना हुआ है। टेम्पल्स in North India are characterized by their rounded pinnacles and column-less compartments called mandapas. Temples in South India were built with conical spires, peaks, gopuram. Temple entrance tower is the speciality of the temples in South India. अब जो नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स हैं वो राउंडेड पिनेकल्स या तो फिर कॉलमलेस कंपार्टमेंट्स के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं, और साउथ इंडिया के टेम्पल्स गोपुरम, जो टेम्पल का एंट्रेंस होता है, टावर लाइक होता है, जिसकी डिज़ाइन बहुत अच्छी होती है। हम मंदिर में जाने से पहले गोपुरम को ध्यान से देखते हैं, अलग अलग कलाकृतियाँ इसमें होती है। तो साउथ इंडिया उसी के लिए ज़्यादा स्पेशलिटी है। टेम्पल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय सैंक्टम, सैंक्टोरम, एंट्रल, मंडप, श्रृंगार चौकी और मुख मंडप। इवन प्रदक्षिणा पथ इज ऑल्सो देयर। अब ये सारे जो भी मैंने वर्ड्स बोले वो टेम्पल्स के पार्ट्स हैं। Some of the important temples of this period include chariot temples built during Pallava period and Rajrajeshwar temple at Tanjore, which was considered to be the tallest temple of that time. The Mughal architecture was unique. A special example of architecture can be seen in Humayun's tomb. अब chariot temples जो पल्लव पीरियड के टाइम बने थे वो बाद में राजराजेश्वर टेम्पल जो तंजौर में है, या फिर तंजौर, सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, वो जो थे वो टॉलेस्ट टेम्पल था जो राजराजेश्वर टेम्पल था उस टाइम का। और अगर आपको मुग़ल आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल देखना हो तो हुमायूंस टॉम्ब कैन बी कंसिडर्ड इट। Mughal Emperor Akbar built the fort of Agra and the fort of Fatehpur Sikri. The tomb of Sasaram of Sher Shah Suri is an important architecture of this time. The Mughals started the tradition of developing gardens. This include Nishat Bagh in Kashmir and the Shalimar Bagh of Lahore and Aram Bagh of Agra.
अब मुग़ल एम्पर जो अकबर था उसने आगरा का फोर्ट बिल्ड किया, दैन फतेहपुर सिकरी का फोर्ट जो थे वो बनाए थे, और जो टॉम्ब था शेरशाह सूरी का वो इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चर था उस टाइम का। और मुगल्स ने गार्डन्स डेवलप करना स्टार्ट किए थे, उसमें से गार्डन कश्मीर में निशत बाग है, और शालीमार बाग लाहौर का है, और आराम बाग जो है वो आगरा में स्थित है। The best specimen of Mughal architecture is the Taj Mahal built by Shah Jahan. Taj Mahal, constructed on the banks of river Yamuna in Agra, Uttar Pradesh, is one of the 7 wonders of the world. It was built by Shah Jahan to commemorate his Begum Mumtaz Mahal. Taj Mahal glorifies the architectural heritage of India and is becoming a center of attraction for tourists around the world. तो जो बेस्ट स्पेसिमेन कहा जाता है मुग़ल आर्किटेक्चर का वो है ताजमहल, जो शाहजहाँ ने बनाया था, और वो रिवर यमुना के पास सिचुएटेड है, जो आगरा में है, उत्तर प्रदेश में। इसे 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में कंसिडर किया जाता है, और शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में ही बनाया था। In addition to this, Red Fort of Delhi was built by Shah Jahan. Beautiful buildings like Diwan-e-Am, Diwan-e-Khas, Rang Mahal were built with this fort, which is made of red stone. Its decoration is a wonderful combination of gold, silver, and precious stones. It was in this fort that Shah Jahan got built the artistic Mayur Asana. जो रेड फोर्ट दिल्ली में है वो शाहजहाँ ने बनाया था, और दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास, रंगमहल ये सारे जो है वो रेड स्टोन से बने हुए हैं। और अमृतसर जो है वो अपने कॉम्बिनेशन ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड प्रेशियस स्टोन्स के लिए काफ़ी जाना जाता है। सो देखो, एज इट इज़ रिटन दैट ड्यूरिंग दिस टाइम द बेस्ट आर्किटेक्चरल पीस, द गोल्डन टेम्पल ऑफ सिख सेक्ट वॉज बिल्ट इन अमृतसर, एज आई टोल्ड यू बिफोर। आर्किटेक्चर ऑफ गुजरात. So now we are talking about our state, Gujarat. So during the Solanki rule and Sultanate period in Gujarat, our very high standard architecture was constructed, a very high standard. Solanki architecture includes the renovation of the temple of Somnath by Bhimdev in 11th century and the Sun Temple at Modhera. अब सोलंकी और सल्तनत का जो रूल था गुजरात में, उस टाइम पीरियड में बहुत ही अच्छे अच्छे आर्किटेक्चर गुजरात में बने हैं। सोलंकी आर्किटेक्चर में उन्होंने, जो भीमदेव थे, उन्होंने सोमनाथ टेम्पल का रिनोवेशन किया था, जिसका डिमोलेशन किया गया था उसका रिनोवेशन हुआ, और सन टेम्पल जो है मोधेरा में स्थित वो भी बनाया गया। The Somnath temple is located in Prabhas Patan near Veraval. Somnath is a very ancient, rich and important center of Shaivism. Today, only the location of the old temple can be seen. The new temple was built in 1951. Somnath is one of the most sacred Jyotirlings in India. अब जो सोमनाथ टेम्पल है वो प्रभास पाटन में सिचुएटेड है, वेरावल में। सोमनाथ टेम्पल जो है वो बहुत पुराना है और इम्पोर्टेंट सेंटर है, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और ये इम्पोर्टेंट सेंटर है शैविज़म के लिए। शैविज़म मीन्स कि जो गॉड शिवा को मानते हो। और ये टेम्पल जो नया है वो 1951 में बिल्ड किया गया था, क्योंकि पुराने टेम्पल जो था उसका हम सिर्फ लोकेशन ही देख सकते हैं, क्योंकि उस पर बहुत सारे आक्रमण हुए थे। ऊपरकोट फोर्ट इज़ इन जूनागढ़ सिटी. The original name of Upperkot was Giridurg. Rakhinger provided water facility by constructing Adi Kadi step well and Navghan well. A saying is there, if you have not seen Adi Kadi step well and Navghan well, your life is worthless. मीन्स कि जो ऊपरकोट फोर्ट है वो जूनागढ़ सिटी में सिचुएटेड है। देखो, ये है ऊपरकोट फोर्ट का पिक्चर। अब जो ऊपरकोट का ओरिजिनल मीनिंग होता है गिरिदुर्ग, और जो राखेंगर है उन्होंने वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड की है। उन्होंने अडी कड़ी और नवघन जैसे स्टेप वेल और वेल्स बनाए हैं, और कहा जाता है कि आप लोगों ने ये स्टेप वेल और वेल ये दोनों ना देखे हो तो आपकी लाइफ वर्थलेस है। The Sun Temple at Modhera in Mehsana district of Gujarat was built during the reign of King Bhimdev I
of the Solanki era. The east entrance of the temple was designed in such a way that the first rays of the sun radiated to Sanctum Sanctorum at the far end of temple and fell on the gem in the center of crown of sun god's idol. As a result, the whole atmosphere seems to be filled with divinity. 12 different idols of the sun can be seen in this temple even today. There is a total of 108 small temples around the water tank outside the temple, which creates a beautiful view when the lamps are lit at dawn and dusk. अब जो सन टेम्पल है वो मोढेरा में भी है, जो महसाणा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है. ये भीमदेव वन के शासनकाल में बनाया हुआ है, जो कि सोलंकी एरा में थे, सोलंकी रूल के टाइम. अब जो ईस्ट एंट्रेंस है टेम्पल का वो इस तरीके से बनाया गया है कि सन की फर्स्ट रे, उसकी पहली किरण ऐसी मंदिर के बीच में गिरती है जो डायरेक्ट सन गॉड का जो आइडल है उसके बीच में जो क्राउन में जेम है वहाँ पे गिरती है और पूरा एटमॉस्फेयर डिविनिटी से भर जाता है. और मंदिर के आसपास 108 छोटे छोटे टेम्पल हैं और अभी भी सूर्य देव के 12 अलग अलग आइडल्स हमें देखने को मिलते हैं. So these are the photos. So one is of Modhera Sun Temple and other is of रानी नी वाव. So रानी नी वाव, जिसको हम रानी की वाव भी बोलते हैं, was built by Udaymati, the queen of King Bhimdev, is a specimen of the world famous stepwell. Rani Ni Vav is a unique example of sculpture and a marvel of architecture of 7-storied stepwell. It is existing in Patan, the old capital of Gujarat. It was built by King Bhimdev's wife, Queen Udaymati, after his death. UNESCO has designed this site as a World Heritage Site. अब रानी की वाव जो है वो रानी उदयमती ने बनाया है, जो किंग भीमदेव की क्वीन थी, उनकी वाइफ थी. और ये वर्ल्ड फेमस स्टेपवेल है. इसमें 7-storied स्टेपवेल है. क्योंकि ये स्टेपवेल है इसीलिए ये 7 माले डीप है. ये क्वीन उदयमती ने अपने लोगों के लिए पानी की कभी भी शॉर्टेज ना हो इसीलिए बनाया गया था. और ये किंग भीमदेव की डेथ के बाद बनाया हुआ है और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है. सो the Rudra Mahalay of Siddhpur, built by Siddharaj Jaisingh, it's considered to be a unique architecture of Gujarat. Being a Shaivite, Siddharaj associated the name of Mahalaya with Rudra. According to some historians, it must have been 7-storied palace with Jarukhas, although presently only 1 story exists. It includes architecture of columns and torrents. So, ये जो है वो रुद्र महालय है. ये है जो है वो अभी सिर्फ 1 स्टोरी ही दिख रहा है हमें. हिस्टोरियंस है वो इसे प्रिडिक्ट करते हैं कि ये 7 स्टोरी का पैलेस होगा पूरा विथ जरूखास. जो ये रुद्र महालय है वो जो सिद्धपुर में है वो सिद्धराज जयसिंह ने बनाया हुआ है. वो शैविज़्म को फॉलो करते थे, इसीलिए सिद्धराज जो थे उन्होंने रुद्र के साथ ये महालय का नाम रखा, इसलिए रुद्र महालय हुआ. So, Malav Lake in Dholka and Munsar Lake in Viramgam were built on the order of Siddharaj's mother, Minal Devi. Sahasraling Lake was built in Patan during the reign of Siddharaj Jaisingh. Apart from this, the Kirti Toran and the Sharmishtha Lake are the places of interest in Vadnagar. अब जो मालव लेक ढोलका का है और मुनसर लेक विरमगाम के हैं वो सिद्धराज की मदर मिनल देवी के ऑर्डर पर बनाया हुआ था. जो पाटन में है सहस्त्रलिंग लेक वो सिद्धराज जयसिंह के रेन में बनाया गया था. और कीर्ति तोरण है और शर्मिष्ठा लेक थे वो वडनगर में सिचुएटेड है. द सिटी ऑफ अहमदाबाद वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय अहमद शाह इन 1411 AD. During the Sultanate period, the capital was shifted to Ahmedabad from Patan. अब जो अहमदाबाद था वो अहमद शाह ने बनाया हुआ था 1411 AD में. अब सल्तनत पीरियड के टाइम जो पाटन का कैपिटल था वो अहमदाबाद में शिफ्ट हो गया. द स्पेशल आर्किटेक्चर्स ऑफ अहमदाबाद इंक्लूड फोर्ट ऑफ अहमदाबाद, फोर्ट ऑफ भद्रकाली एंड जामा मस्जिद. Fort is included in the World Heritage Site. The Jama Masjid of Chapaner
The fort of Chapaner and the stepwell of Rani Ruda Devi of Adalaj are famous architecture. Among the other architectures of Gujarat, Hose Kutub, for example, Kakaria Lake and Naginawadi, Dabhoi's Fort, Khambat, and Dholka's mosques can be considered as major architectures. अहमदाबाद में अलग अलग आर्किटेक्चर्स जो बने हुए हैं, फॉर एग्जांपल अहमदाबाद फोर्ट, भद्रकाली फोर्ट, जामा मस्जिद, और ये जो फोर्ट है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है. जामा मस्जिद ऑफ चापानेर, फोर्ट ऑफ चापानेर, स्टेपवेल ऑफ रानी रुड़ा देवी स्टेपवेल बनाया जो था, कि अडालज वो में famous है, वो एक architecture फेमस है. आर्किटेक्चर है. और ऐसे कई सारे मेजर आर्किटेक्चर्स के नेम्स दिए गए हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिद्दी सैयद नी जाली is world famous among special architectures of Ahmedabad. Window of Sidi Syed Jali has special type of lattice work. It is extremely fine carving in stone. It is considered as one of the finest architectural specimens in the world. अब सीदी सैयद की जाली है, उसमें स्टोन कार्विंग किया गया है. इतना फाइन कार्विंग है कि आप इससे वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्किटेक्चरल मास्टरपीस में मान सकते हो. So that's it for part 1. Now stay tuned for part 2. I hope you learned something from this video.